Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Okay, so आज से हमने थोड़े चेंजेस कर लिए हैं क्लास में. The class timing will be 9 to 10. हम 9 to 10 स्टडी करेंगे, but for you it is not over. आपको 10 to 11 क्या करना है? रिवीजन करना है. फॉर एग्जाम्पल हम डेली क्या करते हैं, कल क्या पढ़ाया था तो वो रिवीजन करते हैं, फिर न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका भी रिवीजन होता है. सो रिवीजन टेक्स 30 मिनट्स. सो आज से हम 1 आवर लेक्चर लेंगे. सो ऐसा रिवीजन नहीं कर सकते कि 30 मिनट्स रिवीजन में ही चली जाए. सो फिर स्टडी क्या करेंगे? सो from today onwards we will do a quick revision. हम quick revision करेंगे. You have to answer very quickly. आपको फटाफट से आंसर देने होंगे. एंड आज का तो जो टॉपिक हमने स्टडी किया है उसके बाद का रिवीजन आपको 10 o'clock के बाद करना है. वन अनदर फैकल्टी और one people of Mac Education will join this meeting and you have to do revision on your own. आपको एक दूसरे से क्वेश्चन करना है, ग्रुप डिस्कशन टाइप करना है कि ये टॉपिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन, उसमें क्या होता है. सो काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन करना है. सो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस Okay. So let's start today's class. Let's do a quick revision of our previous class. What we have completed yesterday. tuberculosis, UTI, obesity in pregnancy, and Okay. complication during pregnancy. Okay. So tell me about tuberculosis. चलो जल्दी जल्दी. Airborne route 3 transmit થાય communicable disease છે. Then improper compliant, non-compliant with treatment ના કારણે multi drug resistant થઈ જવાય. Okay. ट्रांसमिट कैसे होगा? Transplacental is rare, but amniotic fluid aspirate થઈ જાય તો it may be transmit. And another thing. Third point. Newborn can become infected from contact with infected person. People, yes. It is airborne disease. So जो भी infected है उसके contact में newborn आ जाएगा तो उसका हो जाएगा. What is the risk to a pregnant female? Hypertensive disorder. Hypertensive disorder होगा. कैसे diagnose करोगे कि person is suffering from TB? Chest radiography. Okay, सबसे पहले क्या करते हैं हम? चेस्ट रेडियोग्राफी डायरेक्टली नहीं करते हैं, बट फर्स्ट स्टेप वुड बी Skin testing. tuberculin skin test. It can be done during pregnancy. Yeah, Yes, but generally PHCP prefer to after delivery. yes prefer to do after delivery, but it is not contraindicated during pregnancy. अगर ज्यादा रिस्क लगता है तो डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी स्किन टेस्टिंग कर देंगे. आफ्टर डूइंग ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे? X-ray. yes, chest x-ray, chest radiograph, both are same. so chest x-ray करेंगे, but उसमें भी क्या ध्यान रखना है? After 20 weeks of gestation. yes, you should remember the rationale because organs are not fully developed till 20 weeks. उसके बाद डेवलप हो जाते हैं, सिर्फ उसका ग्रोथ होता है. सो 20 वीक्स तक नहीं कर सकते, 20 वीक्स के बाद करना है. और उसमें भी मदर को एब्डोमेन पर लीड का शील्ड पहना कर ही करना पड़ता है. सो दिस इज अबाउट डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के बाद असेसमेंट फाइंडिंग्स मदर में क्या होंगे, न्यूबॉर्न में क्या होंगे? Fever, lethargy, poor feeding, failure to thrive, respiratory distress, hepatosplenomegaly, meningitis. Disease may spread to all major organs. yes, these are the assessment findings or signs and symptoms of newborn. What about mother? Possibly asymptomatic, fever and chills, night sweat, weight loss, fatigue, cough with hemoptysis, green or yellow sputum, dyspnea, and pleural. yes. अभी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? कैन वी गिव मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Yes, we can. yes, Yes. but generally After delivery correct. हाँ, PHCP prefer to give medications after delivery अगर वो इतना एक्टिव टीबी नहीं है तो. बट अगर एक्टिव है तो हमें अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी. व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज? क्या देते हैं? Parenteral and deformity. यस, बट अगर मदर रेजिस्टिव हो गई तो तो बच्ची Ethambutol add का. हाँ, they will add ethambutol, but isoniazid is harmful for fetus. Then
Pyridoxine. Pyridoxine. यस Pyridoxine. पायरिडॉक्सिन, यस वो ऐड कर देंगे कि जिससे हार्म थोड़ा कम हो जाए, प्रिवेंट कर सके न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, देन न्यूबॉर्न में क्या करोगे? Skin testing after birth. हाँ, जैसे ही बर्थ होता है स्किन टेस्टिंग करेंगे एंड सीधा आइसोनियाजिड थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। फिर से रिपीट करेंगे स्किन टेस्टिंग 3 to 4 मंथ्स के बाद। अगर वो पॉजिटिव आया तो कंटिन्यू रखेंगे Continue थेरेपी रखवानी तरफ एटलीस्ट 6 months. 6 मंथ तक, और एल्स जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो बंद स्टॉप। कर दो। यस। फिर जो भी बर्थिंग पेरेंट है या फैमिली मेंबर है जिसको टीबी है, उसका 3 consecutive स्पुटम नेगेटिव आया है, फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो कांटेक्ट करवा दो बेबी जोड़े। देयर इज नो नीड टू आइसोलेट द न्यूबॉर्न, वो उसके साथ रह सकता है। हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा था, उसमें सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। अगर लोअर पोर्शन अफेक्टेड हो जाएगा सो इट कैन कॉज लोअर, हाँ, सिस्टाइटिस। और अगर ट्रैवल Cystitis. करके ऊपर चला गया तो Nephropathy. another thing the female could also experience, that is Asymptomatic Urge. bacterial. what is that? Bacteria urine में present रहते but asymptomatic situation. हाँ, bacteria will be present in urine but there is no symptoms of UTI. कौन सी वजह से UTI हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस? Young age, sexual activity, obesity, catheterization, ओके, anemia. यस, ऑलरेडी उसको UTI हुआ था पहले, उसको कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट की एब्नॉर्मलिटीज है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है, सिकल सेल एनीमिया है, तो दिस कुड बी रीजन। स्क्रीनिंग कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे कि यूटीआई है? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करोगे? यूरिनरी कल्चर करें, स्क्रीनिंग करें। यस, यूरिन का सैंपल लेके उसका कल्चर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यूटीआई है, सो हम ब्लड भी ले सकते हैं टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं। कब करेंगे यूरिन टेस्ट? फर्स्ट प्रीनेटल विजिट और 12 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। हाँ, और जो भी हाई रिस्क वाली है, ये जो प्री डिस्पोजिंग वाली फीमेल्स है, तो उसका फिर से रीस्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा। यस, असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन चैप्टर 55, बट व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर? पाइलोनेफ्राइटिस हशे तो हॉस्पिटलाइजेशन ની જરૂર પડશે, हाँ, एंड અને એન્ટીબાયોટિક અને પોસિબલ ટોકોલાઇટિક देना पड़ेगा। और सिस्टाइटिस होगा तो એન્ટીબાયોટિક્સ થી થઈ। हाँ, पर वो घर पे ही ले सकती है, देर इज नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। बट अगर वो ट्रीट नहीं हुआ और ऊपर चला गया तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। देन हमने देखा ओबेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? Gestational diabetes, hypertension, preeclampsia, यस, thromboembolism, increased need for cesarean birth, यस। डिलीवरी के वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? obtaining IV access, epidural access, incubation में decrease वो अच्छे oxygen से हो consumption जाएगा? नहीं हो जाएगा, हाँ, तकलीफ डिफिकल्टी होगी। यस, देन देर इज अ प्रॉब्लम इन ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट पर स्ट्रेस पड़ने की वजह से न्यूबॉर्न में क्या प्रॉब्लम होगा? stillbirth, premature birth, congenital anomalies, then future obesity, heart disease, difficulty in breastfeeding, हाँ, क्यों होता है ये, क्यों होता है ब्रेस्ट फीडिंग और चेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी? क्योंकि hormones fluctuate। नो, प्रोलैक्टिन सीक्रेट में Secret है। प्रोलैक्टिन का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को, तो तुरंत ही प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन मदर में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, विच इंड्यूसेस द ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन। बट मदर ओबेस है, तो ड्यू टू दैट हार्मोनल प्रॉब्लम, वो जो प्रोलैक्टिन है वो उसका रिस्पॉन्स ही कम हो गया है
बेबी सक कर रहा है फिर भी प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो रहा है, सो इट कैन नॉट स्टार्ट द लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती, और इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ होती है फॉर फर्स्ट वीक। फिर धीरे धीरे वो न्यूज टू हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम होगा ब्रेस्ट फीडिंग में। ओके, आफ्टर डिलीवरी क्या प्रॉब्लम होगा मदर को? Thromboembolism, hemorrhage and endometritis. ओके, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आप कैसे प्रिवेंट कर पाओगे? स्टॉकिंग से, Dawkins, स्टॉकिंग, कंप्रेशन डिवाइस, यस prophylaxis. यस, मेडिकेशन, इसके सिवाय और कुछ कर सकते हो? एम्बुलेट कराओ। अर्ली एम्बुलेशन, यस। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर मदर को थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, सो आप स्टॉकिंग्स और सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस यूज करोगे? नो, क्यों? એમ્બોલસ થઈ જાય, એમ્બોલિઝમ થઈ શકે છે. हाँ, थ्रोम्बस हो गया है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। स्टॉकिंग्स और सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस और वो सब नहीं दे सकते। वी हैव टू ओनली गिव मेडिकेशन, बिकॉज अगर आपने कंप्रेशन डिवाइसेस दे दिया, स्टॉकिंग्स दे दिया, तो वो थ्रोम्बस वहां से निकल जाएगी एंड फ्री फ्लोट करके लंग्स तक चली जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकती है। बट if there is a risk of thromboembolism because of obesity, तब आप स्टॉकिंग्स और कंप्रेशन डिवाइस यूज कर सकते हो, बट थ्रोम्बस होने के बाद नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। देन हेमरेज होगा तो क्या करोगे आप? ब्लीडिंग है तो नॉर्मली व्हाट वी डू, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन देते हैं एंड फंडस पर एक्सरसाइज करवाना, मसाज, फंडल मसाज मसाज। करते हैं, यस। बट ये ओबेस है तो इसकी वजह से हम उनका फंडस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर है, एट व्हाट लोकेशन द फंडस इज। सो मसाज करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो इनको सिर्फ आप ऑक्सीटोसिन ही दे सकते हो। एंड अगर फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा है तो एंटीकोएगुलेंट दे दोगे। एंड इन्फेक्शन के लिए क्या करोगे? ઇન્સિશન સાઇટ, हाँ, इंसिजन साइट क्या? સિરિંજ અસેસમેન્ટ કરવાનું. यस, मॉनिटरिंग करते रहो। what you will monitor, what you will assess? અત્યારે એસેન્સ ના થઈ ગયું હોય, કારણ કે ઓબેસ હોય તો ओके, आप देखोगे कि वेदर द suture लाइन इज इंटेक्ट और नॉट, बट क्या वो असेस कर रहे हो, कैसे पता चल रहा है? रीडा Episiotomy साइन severe थी। incision. रीडा स्कोर, यस। That's कोई भी इंसिजन को असेस करना है तो हमें रीडा स्कोर चेक करना होगा। रीडा स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है, suture लाइन कैसी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सेपरेट हो रही है कि इन्फेक्टेड है, और क्लीनिंग करते रहना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और suture लाइन देके ही आपको पता चल जाएगा कि वेदर देयर इज लाइसेंस और नॉट। फिर हमने एक्स्ट्रा एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस देखी थी, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखी थी? डेंटल एब्सेक्स, डेंटल एब्सेस, broken or missing teeth. यस। Pregnancy, gingivitis, periodontal disease, pyogenic granuloma, oral cancer, iron Okay. deficiency. What is difference between gingivitis and periodontitis? What is the difference? Inflammation of gum, That is called as, gingivitis. okay, so what is periodontitis? સરાઉન્ડિંગ ટીથની સરાઉન્ડિંગ જે ગમ હોય એમાં ઇન્ફ્લામેશન થાય ને રિગ્રેસ થાય, ધેટ્સ વાય ટીથ એક્સપોઝ થશે. Yes, and that is called as periodontitis. It is a periodontal disease. What is pyogenic granuloma? What is pyogenic granuloma? न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म होगी और उससे क्या बन जाएगा? ટ્યુમર, यस, ट्यूमर जैसा, क्लॉट जैसा बन जाएगा। इनिशियली दैट इज फाइन, बट अगर उसको हम रखेंगे सो देयर माइट बी चांसेस कि वो मैलिग्नेंट हो जाए। तो जैसे ही वो होता है वी हैव टू रिमूव दैट। बट ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड क्यों होती है ये कॉम्प्लिकेशन?
दैट वी हैव आल्सो स्टडीड रिस्क फैक्टर्स, एंड आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो एंड कैसे अगर हो गए हैं तो मैनेज करना है, वो हमने स्टडी किया था. यू हैव टू रीड दिस एंड रिमेंबर दिस. ग्रुप डिस्कशन में आप ये डिस्कस कर सकते हो. सेकेंड कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी थी, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, तो हमने उसके रिस्क फैक्टर देखे एंड कैसे आप उसको प्रिवेंट और ट्रीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वो हमने देखा था. थर्ड कॉम्प्लिकेशंस क्या देखी? यस, एज्मा. क्यों होता है प्रेगनेंसी में एज्मा? ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में जस्ट लाइक जीडीएम प्रेगनेंसी में हो जाए, पहले नहीं होता. इट इज नॉट लाइक दैट. उसको होगा ही, बट प्रेगनेंसी में उसके सिम्टम्स और वर्स हो सकते हैं, एक्सर्सरबेट हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड द रीजंस वी हैव सीन कि क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सर्सरबेट. अगर हो जाता है सो अस्थमा कैसे, नॉर्मली जो भी पर्सन को एज्मा होता है वो नॉर्मली लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेटर्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलर्स वो सब ले ही रहे होते हैं. बट जब भी एक्सर्सरबेट हो जाता है तब उनको कैसे मैनेज करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, सो आपको वो पता होना चाहिए. फर्स्ट देयर विल बी ऑलवेज, क्या लेगी मदर या जो भी पर्सन है वो क्या करेगा? शॉर्ट एक्टिंग. ओके, शॉर्ट एक्टिंग. कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है? साबा है, ब्यूटेरॉल. ब्यूटेरॉल, नॉट ब्यूटेरॉल. हाँ. अगर एमसीक्यू में है मेडिसिन और एक ब्यूटेरॉल वाली है और एक टेरोल वाली है, सो यू हैव टू सिलेक्ट ब्यूटेरॉल, नॉट अ टेरोल. टेरोल इज अ लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट, लाबा ड्रग है. ओके, देन ब्यूटेरॉल ड्रग फर्स्ट दोगे, सेकंड ड्रग क्या दोगे? एंटीकोलिनर्जिक. एंटीकोलिनर्जिक्स. कैसे पता चलेगा कि दिस आर एंटीकोलिनर्जिक्स? ट्रोपियम. ट्रोपियम से, यस. एंड थर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसे पता चलता है स्टेरॉइड्स है? सोन, जोलोन. यस, सोन, सोलॉन, ओन, ऐसे जो पीछे सफिक्स होते हैं, सो उससे पता चल जाता है कि ये है. पर ये सीक्वेंस याद रखनी है, कभी भी एक्सर्सरबेशन हो ऐसे ही मैनेज करना होगा. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या देखी हमने? Zika virus. कैसे होता है, व्हाट इज दैट? जीका वायरस क्या है? Vector borne disease. किससे Mosquito. होता है? मस्कीटो बाइट से होता है. यस. सो क्यों होता है? सो उसके दो ही रीजन है, या तो जहां पर ज्यादा है वहां पर ट्रैवल किया है, या पर वहां पर रहकर आई है मदर. कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सो उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ ही हो सकता है, सो उसके लिए हमने स्टडी किया था. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर. आई होप आपने ये चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए होंगे. इफ नो, सो यू कैन कंप्लीट इट टुडे आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, that is next chapter. ओके, सो चैप्टर नंबर 24, लेबर एंड बर्थ. अब तक हमने क्या कंप्लीट किया था ओबीजी में? फर्स्ट हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन हमने प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज नॉर्मल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है, वो सब पढ़ा. फिर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस पढ़े. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकेंड फेज, दैट इज इंट्रापार्टम पीरियड. लेबर एंड बर्थ के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर एंड. लेबर, यस. उसके बाद का चैप्टर क्या होगा? नॉर्मल पोस्टपार्टम पीरियड, कि नॉर्मल पोस्टपार्टम पीरियड कैसा होता है, क्या चेंजेस होते हैं उसमें, और वो सब पढ़ेंगे. उसके बाद का चैप्टर होगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड. सो तीनों पीरियड पढ़ने हैं, तीनों पीरियड के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने हैं. लास्ट में वी विल स्टडी अबाउट न्यूबॉर्न. सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 24, लेबर एंड बर्थ. What is the priority concept in this chapter? So the priority concepts are oxygenation and perfusion. Yes. Why? Yes. Someone is trying to speak something. Okay. So the priority concepts are oxygenation and perfusion. Why? Because we know during labor, yeah, during contraction, the placental blood perfusion from mother stops. So fetus को blood supply नहीं मिलेगा. Temporary period के लिए भी blood supply stop हो जाता है. So it is our priority कि baby को
मदर को, दोनों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मिलता रहे, ऑक्सीजन चालू रहे एंड परफ्यूजन भी अच्छा हो बेबी तक. सो दिस आर द प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. Okay, so let's start about the process of labor first. So process of labor में we know there are 4 P's. कोई मुझे बताएगा कौन से P's है? 4 P's कौन से है? passage, passenger, power, and psychology. Psychology. Okay. So first description पढ़ते हैं कि labor क्या है, birth क्या है. Labor का मतलब क्या? What is labor and what is birth? What is labor? आपको क्या पता है labor मतलब क्या? Contraction આવે પર આમ हाँ. last time heavy dynamic sequence time અને પેલું set હોય ને એમાં આવે Okay. And what is birth? deliver થાય એ બધું. ओके. लेबर मतलब कि मदर को अभी जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं लेबर की वजह से, लेबर स्टार्ट हो गया है, उसका मतलब कि नाउ कभी भी डिलीवरी हो सकती है, बेबी का बर्थ हो सकता है. सो लेबर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं दैट इज लेबर. बर्थ मतलब जो बेबी जो बाहर आ रहा है, बेबी का बर्थ हो गया, बेबी बाहर आ गया, एक्सपेल हो गया, सो दैट इज बर्थ. लेबर मीन्स कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. यस, वो वॉलंटरी नहीं होते, मदर के कंट्रोल में नहीं होते, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस लाने हैं तो आ जाए, वो खुद से ही आएंगे, बट एक सीक्वेंस में आते हैं, कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस. पहले थोड़े स्लो होंगे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, फिर और इंक्रीज होंगे, सो ऐसे एक सीक्वेंस में आते हैं. एंड इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं चालू रहते. अगर कंटिन्यूअस चालू रहेंगे सो प्लासेंटा पर ब्लड सप्लाई तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा. सो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, फिर रिलैक्स होगा यूट्रस, तो तब तक ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा. फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ब्लड सप्लाई स्टॉप, फिर रिलैक्स होगा तो ब्लड सप्लाई चालू. सो ऐसे इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं. तो ये जो पूरी प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शंस आने की, दैट इज कॉल्ड एज लेबर. बर्थ मतलब एक्चुअल इवेंट ऑफ बर्थ, बेबी डिलीवर हो रहा है ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यू टू दैट लेबर, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ. There are 4 major factors, that is 4 P's, that interacts during normal childbirth. The 4 P's are interrelated and depend on each other for safe birth, and they are powers, passageway, passenger, and psyche. Or you can also remember psychological. So ये 4 P's हैं, पावर, पैसेजवे, पैसेंजर एंड साइकी. ये तीनों, ये चारों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अगर ये चारों अच्छे से वर्क करेंगे तभी बेबी सेफली डिलीवर हो सकता है, सेफ बर्थ हो सकता है. अगर एक में भी प्रॉब्लम हो जाएगा सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, नॉर्मल सेफ डिलीवरी नहीं हो सकती. सो लेट्स स्टडी अबाउट ईच पी. तो फर्स्ट इज पावर. पावर से मतलब क्या है? पावर हम किसको बोलते हैं? पावर का पावर क्या इंडिकेट करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. Contraction of हाँ, power. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मतलब पावर अगर इतना सफिशिएंट नहीं होगा तो बेबी डिलीवर हो पाएगा नहीं. नहीं. सो फॉर नॉर्मल सेफ बर्थ द पावर शुड बी सफिशिएंट, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे होने चाहिए. सो पावर मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट फोर्सेस एक्टिंग टू एक्सपेल द फीटस. ये क्या है? पावर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को डिफाइन करता है वो क्या है? सो एक फोर्स है जो फीटस को बाहर निकालने में हेल्प करता है. पावर की वजह से ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन 2 चीजें होती है. फर्स्ट इज इफेसमेंट एंड नेक्स्ट इज डायलेशन. व्हाट इज इफेसमेंट? इफेसमेंट मतलब क्या? Opening of cervix. सर्विक्स નાનું થાય ને એકદમ સોફ્ટ हाँ. થાય. शॉर्ट हो जाएगा सर्विक्स. सो कैसे शॉर्ट होगा? दिस इज द नॉर्मल क्लोज सर्विक्स. इतनी है सर्विक्स की लेंथ. अभी जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, बेबी नीचे हो रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो सर्विक्स ऐसा हो जाएगा. आपने देखा होगा जितना बलून ज्यादा फुलाते हो उतनी उसकी ये जो आगे की स्पेस होती है वो कम हो जाती है. सो इसका मतलब कि सर्विक्स शॉर्ट हो गया. पहले सर्विक्स की लेंथ इतनी थी, अभी यू कैन बैरली सी द लेंथ. फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ऐसा ही हो जाएगा डायलेट होने की वजह से. तो धीरे धीरे सर्विक्स शॉर्ट होता है बिकॉज यूट्रस ऐसे स्ट्रेच हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. सो दैट इज कॉल्ड एज इफेसमेंट. एंड डायलेशन मतलब सर्विक्स ओपन हो रहा है. इफेसमेंट होगा उसकी वजह से ही डायलेट हो रहा है, बिकॉज सर्विक्स शॉर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो डायलेट हो जा रहा है. सो इफेसमेंट मतलब शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स. थिनिंग क्यों? आपने देखा होगा कि
अब जैसे ही बलून फुलाते हो तो वो थीन हो जाता है, सो सर्विक्स ऐसे पूरा स्ट्रेच हो जाएगा तो उसकी नीचे की बॉर्डर पतली हो जाएगी, थीन हो जाएगी। रबर बैंड हो, रबर बैंड को आप खींचोगे, नॉर्मल स्टेट में वो ठीक लगता है, जितना आप खींचते हो तो वो कितना थीन हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। वो शॉर्ट होगा, खींचेगा तो थीन हो जाएगा। सो द शॉर्टनिंग एंड थीनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर is called as effacement. We know there are how many stages of labor? लेबर के 4. ओके, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? डायलेशन, ओके, सेकेंड स्टेज में बच्चू डिलीवर था, थर्ड स्टेज प्लेसेंटा रिमूव, प्लेसेंटा ने रिमूव था, और फोर्थ स्टेज रिकवरी। यस, ऑब्जर्वेशन, यस ऑब्जर्वेशन पीरियड या फिर जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है इमीडिएट आफ्टर द प्लासेंटल डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ स्टेज। सो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज इज फॉर द डायलेशन। सो फर्स्ट स्टेज लेबर में ही इफेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स। व्हाट इज डायलेशन? इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल ओरिफाइस एंड सर्वाइकल कैनाल ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पूरी जो सर्वाइकल ओस है वो पहले क्लोज थी, धीरे धीरे वो डायलेट होकर पूरी 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाती है। सो जो एनलार्जमेंट हुआ सर्वाइकल ओरिफाइस का, ओस का, दैट इज कॉल्ड एज डायलेशन। पुशिंग एफर्ट्स ऑफ द क्लाइंट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, यस अभी फर्स्ट स्टेज में ये जो इफेसमेंट और डायलेशन हो रहा है उसमें मदर को पुश करने की जरूरत नहीं है, एक बार कंप्लीटली डायलेट हो जाता है देन अभी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा और तब मदर को पुशिंग एफर्ट लगाना पड़ेगा। पावर तो है, कॉन्ट्रेक्शंस तो है, बट साथ में मदर को भी पुशिंग एफर्ट लगाना पड़ेगा टू डिलीवर द बेबी। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से पहले इफेसमेंट हुआ, फिर डायलेट हुआ एंड सेकेंड स्टेज में मदर एंटर हो गई आफ्टर 10 सेंटीमीटर डायलेशन। तो अलोंग विथ पावर मदर को भी पुशिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू डिलीवर द बेबी। नेक्स्ट इज पैसेज वे। व्हाट इज पैसेज वे? પેસેજ છે જે એક્સટર્નલ ઓપનિંગ હોય ને વજાઇના અને સર્વિક્સના વચ્ચેનો। ओके, पैसेज मतलब सिर्फ वजाइना और सर्विक्स के बीच का पोर्शन नहीं, पूरा पैसेज। अगर मदर को सीपीडी है तो उसका मतलब पैसेज वे है वो एबनॉर्मल है। कॉन्ट्रेक्शंस भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, मदर भी अच्छे से पुश कर रही है, बट पैसेज वे ही नैरो है, पैसेज वे में ही प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, सो बेबी डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो फॉर इफेक्ट एंड सेफ बर्थ पैसेज वे जो रास्ता है बेबी का वो क्लियर होना चाहिए, और वो रास्ता पूरा पेल्विस से ही स्टार्ट होता है। मदर के यूट्रस में बेबी है, धीरे धीरे वो डिसेंड होता है, वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। पेल्विस को भी अच्छा ओपन होना पड़ेगा, पेल्विस भी अच्छे से ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, सर्विक्स भी अच्छे से ओपन होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, वजाइना भी अच्छे से, उसमें भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक वॉट्स जैसा, ट्यूमर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो पूरा जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड एज पैसेज वे। बाहर भी प्रॉपर वल्वा, एक्सटर्नल ओपनिंग भी अच्छा होना चाहिए, वहां पर भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सो पेल्विस से लेके बाहर तक का रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। So passageway matlab the client's rigid bony pelvis and the soft tissue of the cervix, pelvic floor, vagina, introitus that is external opening of the vagina, ये सब कुछ पैसेज वे में आता है। ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम होगा, अगर पेल्विस में प्रॉब्लम है, सर्विक्स के टिश्यू में प्रॉब्लम है, पेल्विक फ्लोर मसल्स में प्रॉब्लम है, वजाइना में प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल वजाइना में प्रॉब्लम है, रास्ता अच्छा नहीं है, सो बेबी डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज पैसेज वे। पैसेंजर मतलब fetus and placenta. यस, फीटस एंड प्लेसेंटा, जिसको बाहर आना है, जो पैसेंजर है वो। सो फीटस एंड प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज पैसेंजर्स एंड अलोंग विद दैट मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स मतलब एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो पूरी मेम्ब्रेन है, एमनियन एंड कोरियन, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन्स। सो ड्यूरिंग बर्थ फीटस भी निकलता है, प्लासेंटा के साथ साथ पूरी मेम्ब्रेन, सब कुछ बाहर आ जाता है। सो जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट्स है दैट इज कॉल्ड एज पैसेंजर, जो डिलीवर होते हैं। ओके, लास्ट पी दैट इज साइक। साइक मतलब साइकोलॉजी, मतलब किसकी साइकोलॉजी? maternal, मदर की, यस। सो अगर मदर
को नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही है, बट मदर इज नॉट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड, शी इज इन फियर, शी इज इन एंजाइटी, वो ऐसा बोल रही है कि मेरे से नहीं होगा, आई कैन नॉट बियर दिस पेन, सो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी सेफ डिलीवरी हो पाएगी? नहीं। नहीं हो पाएगी। सो फॉर सेफ बर्थ मदर की भी साइकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक शी शुड बी साइकोलॉजिकली फिट इनफ कि हाँ वो बियर कर सकती है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा सकती है। अगर नहीं होगा तो फिर नॉर्मल नहीं हो सकती, CS करना पड़ेगा। सो अ क्लाइंट्स इमोशनल स्ट्रक्चर दैट कैन डिटरमाइन द एंटायर रिस्पॉन्स to labor and influence the physiological and psychological functioning. The client may experience anxiety or fear. Yes, psyche मतलब क्या कि पूरा लेबर से लेके जो पूरा रिस्पॉन्स है, मदर का इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन कैसा होगा। देयर माइट बी चांसेस कि मदर एंशियस और फियरफुल होगी, बट स्टिल शी हैज टू बी स्ट्रांग, उसको एनी हाउ करना है। अगर वो उसका साइकिक इमोशनल स्टेटस इम्बैलेंस हो गया, so फिर she will not be able to undergo a normal vaginal delivery. So for a safe birth, safe normal vaginal delivery, ये चारों पीस कंप्लीट होने चाहिए। एक में भी अब अगर प्रॉब्लम होगा so normal vaginal delivery नहीं हो पाएगी। Understood? Yes, ma'am. Okay, now we are going to study about different terminologies. आपने already फाइनल ईयर में पढ़ा होगा एटीट्यूड, लाई, फिर प्रेजेंटेशन, पोजीशन, ये सब। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब क्या? आप क्या समझते हो एटीट्यूड से इन योर टर्म्स? आपको इंग्लिश में किसी को समझाना नहीं है एग्जाम में, आपको समझना है। सो एटीट्यूड से आप क्या समझते हो? એટીટ્યુડ મીન્સ કે ફીટલના બોડી પાર્ટ છે એ યુટ્રાઇનની અંદર કેવી રીતે એકબીજા સાથે એકોમોડેટ થયેલા છે. यस यस एग्जैक्टली, एटीट्यूड मतलब फीटल के बॉडी पार्ट्स का रिलेशन क्या है एक दूसरे की तरफ। एंड देयर आर ओनली टू एटीट्यूड्स, नॉर्मल एटीट्यूड इज Flexion. फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल इज ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। वी नो कि नॉर्मल एटीट्यूड, नॉर्मली बेबी पूरा फ्लेक्स होता है, उसका हेड टुवर्ड्स चेस्ट ऐसे मूव होता है, हैंड्स चेस्ट तरफ होता है एंड नीज भी चेस्ट की तरफ होते हैं। सो पूरा बेबी फ्लेक्स होता है, उसके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के रिलेशनशिप में पूरे फ्लेक्स होते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल एटीट्यूड। एबनॉर्मल एटीट्यूड मतलब फीटस फ्लेक्स पोजीशन में नहीं है, उसके हाथ भी खुले हैं, उसके पैर भी खुले हैं, उसका हेड भी ऐसे स्ट्रेट है। सो दिस इज एबनॉर्मल attitude. So attitude is the relationship of fetal body parts to one another. Fetus के जो body parts है वो एक दूसरे के साथ कैसे है? What is the relation of fetal body parts to one another? The normal intrauterine attitude is flexion. Flexion is the normal one in which the fetal back is rounded. ऐसे पूरा flex हो जाता है तो fetal की back ऐसे round जैसे हो जाएगी, पूरी ऐसी हो जाएगी. So fetal back is rounded. The head is forward on the chest. Yes, head ऐसे पूरा bend होके chest की तरफ होगा. The arms and legs are folded against the body. Arms और legs ऐसे body की तरफ fold होंगे, पूरा flexed होगा. In the other attitude, that is the abnormal attitude, is extension. Tends to present the larger fetal diameters. Yes, अगर बेबी एक्सटेंडेड होगा मतलब हाथ पैर भी खुले होंगे, बेबी भी खुला है, सो डायमीटर लार्ज हो जाएगा फीटस का। फॉर एग्जांपल ये फीटस ऐसा है, पूरा ऐसे फ्लेक्स होके है, इसमें उसके हाथ पैर ऐसे पूरा फ्लेक्स होके है, सो दिस इज द डायमीटर। अभी बेबी कंप्लीटली ओपन है, ऐसे पैर भी ऐसे है, सो यू कैन सी द डायमीटर विल इंक्रीज। तो उसमें फीटल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज बेबी फ्लेक्स नहीं है। Understood about attitude? Yes. Okay. Next terminology, that is lie. What do you understand by lie? Lie का मतलब क्या है? What do you mean by lie? પોઝિશન Okay, position of whom? किसकी position? બેબી बेबी। Yes. हम इतना हमारी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बेबी की पोजीशन दैट इज कॉल्ड एज लाई, बट फॉर प्रॉपर डेफिनेशन
द थिंग इज, ये मदर है, मदर की वर्टिब्रल स्पाइन ये है, ऐसी मदर स्टैंडिंग पोजीशन में है, सिटिंग पोजीशन में, कोई भी पोजीशन में, मदर की जो स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम वो स्ट्रेट होगी, लॉन्जिट्यूडनल होगी। उसके कंपैरिजन में बेबी की स्पाइन कैसी है वो हम देखते हैं। अगर मदर की भी लॉन्जिट्यूडनल है, बेबी की भी लॉन्जिट्यूडनल है, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल लाई और वर्टिकल लाई। बट मदर की ये है, मदर की स्पाइन ये है, और बेबी अंदर यूट्रस में ऐसे लेटा हुआ है, सो उसकी स्पाइन ऐसी होगी। बेबी का हेड यहाँ पर है और लेग यहाँ पर है, या फिर हेड यहाँ पर है और लेग यहाँ पर है, बट इन शॉर्ट उसकी स्पाइन मदर की स्पाइन से परपेंडिकुलर है, सो उसको हम ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल लाई बोलते हैं। सो इन शॉर्ट वी आर कंपेयरिंग, वी आर सीइंग द रिलेशनशिप ऑफ मदर्स स्पाइन टू द फीटस स्पाइन। अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल पर होंगे, यू कैन सी हियर दिस इज द राइट एंगल। सो जैसे राइट एंगल पर होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल लाइन। सो द रिलेशनशिप ऑफ अ स्पाइन ऑफ द फीटस, फीटस की स्पाइन टू द स्पाइन ऑफ अ प्रेग्नेंट क्लाइंट, उस दोनों का रिलेशनशिप को हम लाई बोलते हैं। सो द नॉर्मल लाई दैट इज लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल वो नॉर्मल है, एंड ट्रांसवर्स दैट इज एबनॉर्मल। सो लॉन्जिट्यूडनल लाइन में क्या होता है, फीटल स्पाइन इज पैरेलल टू क्लाइंट स्पाइन, फीटस की स्पाइन क्लाइंट की स्पाइन से पैरेलल है, दोनों स्ट्रेट है। फीटस इज सिफेलिक और ब्रीच प्रेजेंटेशन, यस। लॉन्जिट्यूडनल लाई है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि फीटस का हेड ऊपर है, ये मदर का हेड है, और यहाँ पर फंडस है, तो फीटस का हेड टुवर्ड्स द फंडस है, एंड नीचे जो सर्विक्स है वहां पर उसके लेग्स है। तो ये पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, हेड ऊपर हो और सर्विक्स अगर बटक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सी प्रेजेंटेशन बोलेंगे, Bridge presentation. ब्रीच प्रेजेंटेशन, यस। अनदर इज ऊपर बटक्स होंगे, मतलब लेग्स यहाँ पर होंगे एंड हेड यहाँ पर होगा, सो बोथ आर लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल लाई, बट प्रेजेंटेशन कुड बी डिफरेंट। सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है दैट इज हेड, और ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है दैट इज बटक्स। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल लाई, उसमें क्या होगा, सो फीटस की जो स्पाइन है वो राइट एंगल पर होगी, यू कैन सी हियर दिस इज द 90 डिग्री राइट एंगल। सो फीटस की स्पाइन है वो राइट एंगल होगी, या फिर परपेंडिकुलर भी हम बोल सकते हैं टू द क्लाइंट स्पाइन, सो दैट इज ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल लाई। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, यू कैन सी हियर, अगर हेड यहाँ पर है या यहाँ पर, जो भी तरफ होगा, यहाँ पर तो शोल्डर ही होंगे, सो प्रेजेंटिंग पार्ट वुड बी शोल्डर। शोल्डर सर्विक्स की क्लोज में शोल्डर ही दिखेगा आपको, एंड डिलीवरी बाय सीजरियन सेक्शन इज नेसेसरी। ऐसे ट्रांसवर्स लाई या हॉरिजॉन्टल लाई में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू कंपल्सरीली गो फॉर सीजरियन सेक्शन, उसमें सीजरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड अबाउट लाई? Yes, ma'am. ओके, लेट मी शो यू फिगर। मैं फिगर दिखाती हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्जिट्यूडनल लाई, मदर की जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज स्ट्रेट, एंड बेबी की भी पैरेलल है, सो मदर की और बेबी की दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो दैट इज लॉन्जिट्यूडनल लाई। ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक है या ब्रीच है? Cephalic. सिफेलिक, बिकॉज हेड नीचे है। यहाँ पर मदर की स्पाइन ऐसे है और बेबी की स्पाइन परपेंडिकुलर है, सो दिस इज ट्रांसवर्स लाई। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट लेफ्ट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर नीचे दिखेगा, सो शोल्डर ऑलवेज प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, सो लेफ्ट शोल्डर नीचे दिख रहा है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स लाई। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या? जे बी प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ fetus. हाँ, प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन जो दिखता है पहले दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। तो जो भी पहली चीज, हमें पता है कि आफ्टर 36 वीक्स बेबी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है, पूरा पेल्विस में फिट होने का ट्राई करता है, तब तक बेबी फ्लोट करता रहता है, पूरा घूमता रहता है, बट आफ्टर 36 वीक्स उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, वो नीचे डिसेंड होके एक फिक्स पोजीशन में आ जाएगा, पेल्विक इनलेट में एंटर कर जाएगा। सो जो भी पहला पोर्शन एंटर करता है दैट विल बी फिक्स, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। अब जब आप सर्विक्स में से देखोगे तो आपको जो भी पहली चीज दिखती है दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। सो पोर्शन ऑफ द फीटस दैट एंटर्स फर्स्ट into the pelvic inlet, जो पहला चीज जो भी पहले एंटर करता है that is the presentation. So there are different types of presentation. First is cephalic presentation. Cephalic presentation मतलब
हेड एंटर कर दिया है फर्स्ट। अभी एक बार एंटर हो गया सो बेबी अब तो फ्लोट कर नहीं पाएगा, सो वो ही रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। सो हेड फर्स्ट एंटर कर गया है। सिफेलिक इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, वो सबसे कॉमन सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, एंड नॉर्मल भी सिफेलिक ही है। सारे प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, सिफेलिक इज द नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, लाइक वर्टेक्स, मिलिट्री, ब्रो एंड फेस। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज मिलिट्री, व्हाट इज ब्रो एंड व्हाट इज फेस प्रेजेंटेशन? जो भी पता हो, एक दो किसी को पता हो तो। सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बहुत सारे वेरिएशंस है। यस, ફેસ એટલે આપણો ફેસ વાળો પાર્ટ જ સૌથી પહેલા Okay. વિઝિબલ થાય. हाँ, દેન બ્રોમાં આપણું ફોરહેડ વાળો પાર્ટ આપણને મતલબ વિઝિબલ થાય. यस, વર્ટેક્સમાં જે ફોરહેડ પરથી આગળ આપણે જે ફીચર હતા ને એ કહીએ ને એ વાળો પાર્ટ વિઝિબલ થશે. ओके ओके। एंड मिलिट्री? એનો કોઈ આઈડિયા નહીં. Okay, okay. So let me show you the image for better understanding. Okay, so you can see here कि there are 4 types of cephalic presentation. This is vertex. Vertex में क्या होगा, बेबी का हेड एकदम फ्लेक्स है, so not the frontal suture but पीछे का हेड पूरा दिखेगा. So this is the vertex. जो आपने बोला कि सूचर्स फर्स्ट, फोरहेड के बाद का जो पोर्शन जो दिखता है, जो एंटीरियर फॉन्टानेल जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंसिपुट और मिलिट्री प्रेजेंटेशन. सो बेबी का हेड फ्लेक्स नहीं है, बेबी का हेड सीधा है. सो जो एंटीरियर फॉन्टानेल वाला जो पोर्शन है वो ही सीधा सर्विक्स में से आपको दिखेगा. So this is called as सिंसिपुट प्रेजेंटेशन और एल्स मिलिट्री प्रेजेंटेशन. थर्ड है बेबी का हेड थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड हुआ है. सो फोर हेड का पोर्शन यू कैन सी हियर फ्रॉम द सर्विक्स. सर्विक्स में से आपको फोर हेड का पोर्शन, ये वाला पोर्शन सीधा दिखेगा. सो आईब्रो वाला पोर्शन, फोर हेड वाला पोर्शन दिखेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रो प्रेजेंटेशन इन द सिफेलिक. एंड पूरा एक्सटेंड, बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा बेबी का हेड, सो पूरा फेस ही दिखेगा, बेबी का नोज, आईज वो सब दिखेगा from the cervix. So that is called as face presentation. Understood? Which one is the normal? Vertex. Vertex, because baby flexed होना चाहिए. अगर सिंसिपुट है तब तक चलेगा, बट अगर ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन है तो गलती से आप पीवी एग्जामिनेशन करने चाहोगे, सो बेबी को इंजरी हो सकती है. सो नॉर्मल इज वर्टेक्स. सिंसिपुट तक अभी चल जाएगा, बट ब्रो और फेस में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बेबी को नेक इंजरी और वो सब ना हो जाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा. सो नॉर्मल पोजिशन इन सिफेलिक, normal presentation in cephalic presentation is only vertex presentation. Okay. Next presentation, that is breech presentation. Breech presentation मतलब Face and cheek part, buttocks. buttocks present हुआ. उल्टा होगा, हेड टुवर्ड्स द फंडस होगा और बटक्स पहले एंटर कर जाएंगे पेल्विक कैविटी में, पेल्विक इनलेट में. So delivery by cesarean section may be required, although vaginal birth is often possible. Yes, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सीएससी करना पड़ेगा हमें. ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है. इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट लाइक दैट इम्पॉसिबल नहीं है. ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डॉक्टर सीएससी करते हैं, नॉट टू टेक एनी चांस. ब्रीच प्रेजेंटेशंस के भी 3 वेरिएशंस है, फ्रैंक, फुल एंड फुटलिंग. What is the difference between this? फ्रैंक मतलब क्या, फुल मतलब क्या और फुटलिंग मतलब क्या? फ्रैंक ब्रीच, फुल ब्रीच एंड फुटलिंग ब्रीच, उसका मतलब क्या? ફૂટલિંગમાં તો જે લેગ હશે એ જ પ્રેઝન્ટેશન પાર્ટ હશે. हाँ, बेबी के बटक्स तो नीचे है, बट सर्विक्स में से सीधा आपको लेग ही दिख रहा है. लेग ऐसे पूरा एक बाहर आने का ट्राई करेगा, पहले लेग आएगा, सो दैट इज फुटलिंग. व्हाट अबाउट फ्रैंक एंड फुल? કમ્પ્લીટમાં બેબી ફુલ્લી ફ્લેક્સ હશે, मतलब બધું જ એનું હશે, ઓનલી બટક્સ જ હશે જે હશે. हाँ, बटक्स ही दिखेंगे. यस, बेबी पूरा फ्लेक्स है. एंड फ्रैंक मतलब
उसमें भी बटक्स ही दिखेंगे बट बेबी के लेग्स पूरे ऊपर की तरफ होंगे. सो यू कैन सी हियर इन द इमेज फ्रैंक प्रेजेंटेशन में बेबी का लेग्स है वो फ्लेक्स्ड नहीं है, लेग्स टुवर्ड्स द हेड है. दिखेगा तो आपको बटक्स ही बट लेग्स फ्लेक्स्ड पोजीशन में नहीं है. सो दिस इज द फ्रैंक ब्रीच. कंप्लीट ब्रीच में बेबी फ्लेक्स्ड है, कंप्लीटली ऐसा है बट पूरा उल्टा है, वर्टेक्स जैसा ही है बट सिर्फ उल्टा हो गया है. कंप्लीटली फ्लेक्स पोजीशन में है, हेड भी फ्लेक्स है. सो दिस इज कंप्लीट ब्रीच. एंड फुटलिंग में यू कैन सी हियर कि एक पैर ज्यादा पहले ही ओपन हो गया है. जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा पहले पैर निकल गया है बिकॉज पैर वहां पर पहले था. सो दिस इज फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So next terminology, next presentation that is shoulder. हमने देखा था कि अगर ट्रांसवर्स लाई होगी तो शोल्डर भी प्रेजेंट हो सकता है. शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बेबी पूरा ट्रांसवर्स होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. और क्या चीज आपको दिख सकती है, तो आर्म दिख सकते हैं, हाथ. फिर अगर ट्रांसवर्स में पूरा ऐसे ऊपर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसवर्स बेबी है, यहाँ पर दिस इज द एब्डोमेन, यूट्रस, और बेबी का फेस टुवर्ड्स द फंडस है और बेबी ऐसे बैक नीचे की तरफ है. तो आपको बैक दिखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का फेस नीचे है, बैक पीछे है. सो एब्डोमेन दिख सकता है, साइड भी दिख सकती है. सो ऑल दिस कंसिडर एज अ शोल्डर प्रेजेंटेशन. आर्म, हाथ दिख सकते हैं, बैक दिख सकती है, एब्डोमेन दिख सकता है, या फिर एक साइड भी हो सकती है. If the fetus does not spontaneously rotate, or if it is impossible to turn the fetus manually, cesarean section may need to be performed. Yes, ट्रांसवर्स या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. मैन्युअली डॉक्टर क्या करते हैं, अगर धीरे धीरे पता चलता है कि जैसे जैसे 36 मंथ तरफ जा रही है मदर बट फिर भी फीटस अभी ट्रांसवर्स पोजीशन में है, सो डॉक्टर्स मैन्युअली बेबी को मूव करना स्टार्ट करते हैं, बाहर से उसको रोटेट करेंगे. उसमें फिर चलेगा, ब्रीच होगा तो भी चलेगा, सिफेलिक हो जाए तो बेस्ट है. पर डॉक्टर्स ऐसे मैन्युअली उसको मूव करने का ट्राई करते हैं. अगर वो सक्सेसफुली टर्न हो जाता है, मैन्युअली मूव हो जाता है, दैट इज फाइन. बट अगर नहीं हो पा रहा है, फीटस अभी फिट हो गया है, पूरा अंदर डिसेंड होके ट्रांसवर्स पोजीशन में फिट हो गया है, सो उसको हम मूव नहीं कर पाएंगे, तो फिर ऐसे टाइम पर हमें सीजरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा. वी कैन नॉट गो फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी. अंडरस्टूड? Yes. ओके. नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग पार्ट. प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब जो हमने ये देखा कि प्रेजेंटेशन जो भी है, प्रेजेंटिंग पार्ट उस वो ही होगा. अगर सिफेलिक है प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटिंग पार्ट हेड ही होगा. सो द प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब जो भी स्पेसिफिक फीटस का जो स्ट्रक्चर है सर्विक्स के नजदीक है, दैट इज अ प्रेजेंटिंग पार्ट. अंडरस्टूड अबाउट प्रेजेंटिंग पार्ट? जो भी सब प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट भी उसके प्रेजेंटेशन रिलेटेड ही होगा. बटक्स हो सकता है, हेड हो सकता है, फोर हेड हो सकता है, एंटीरियर फॉन्टानेल, देन पैरिटल हो सकता है बोन, फिर शोल्डर हो सकता है, आर्म, बैक. सो दिस वुड बी अ प्रेजेंटिंग पार्ट. बटक्स हो सकते हैं. सो जो भी प्रेजेंटेशन है उसका ही प्रेजेंटिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज पोजिशन. पोजिशन का मतलब क्या होगा? What do you mean by position? ફીટસ રાઈટ સાઈડ છે કે લેફ્ટ સાઈડ છે Okay. Fetus right side है कि left side है? Okay. Any other thing? You are correct. તેનાની બેક કઈ સાઈડ છે એન્ટીરિયર છે કે પોસ્ટીરિયર છે ओके. सो पोजीशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमें पता चल गया कि बेबी लॉन्जिट्यूडनल है, उसमें भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है. द प्रेजेंटिंग पार्ट इज आल्सो द पैराइटल फ्रंट, पैराइटल सूचर्स, और वो है, हमें वो भी पता चल गया. बट पोजीशन क्या है, बेबी कौन सी तरफ है? सो दैट जो रिलेशनशिप है बेबी का, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका रिलेशनशिप हम मदर के पेल्विस के साथ कंपैरिजन करेंगे. सो जो भी पोजीशन निकलेगी हम उसको पोजीशन कंसीडर करेंगे. यू कैन सी हियर इन द इमेज, ये मदर का पेल्विस है. मदर के हम डायमीटर्स देखते थे, पेल्विस के हम डायमीटर्स देखते थे. सो जो ये डायमीटर है उसको हम कौन सा बोलते थे? ये डायमीटर को क्या बोलते थे हम? એન્ટીરિયર પોસ્ટીરિયર एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. सो एंटीरियर पोर्शन क्या होगा? जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला है दैट इज एंटीरियर पोर्शन, जो सेक्रम वाला है दैट इज पोस्टीरियर पोर्शन. और इस डायमीटर को हम क्या बोलते थे? ट्रांसफर. ट्रांसवर्स. जो हॉरिजॉन्टल है उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, पर ट्रांसवर्स में भी साइड है.
दिस इज द राइट साइड, मदर आपके सामने खड़ी है, हमारी राइट साइड हमारी लेफ्ट नहीं देखनी है, आपको इमेजिन करना है कि मदर इज फेसिंग टूवर्ड्स यू, सो ये मदर की राइट साइड है, ये मदर की लेफ्ट साइड है। ओके, नाउ हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, बेबी कंप्लीटली फ्लेक्स है, तो हम उसका ये ऊपर का पोर्शन हेड कंसीडर करेंगे। सो वो कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें देखना है। सो ये बेबी का हेड है और वो कहाँ पर है, सो राइट साइड है, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर है, मदर की राइट साइड पर है, ये जो पूरा हेड ऑसिपुट पोजीशन है, ऑसिपुट हम देख रहे हैं ये पूरा। सो बेबी का ऑसिपुट राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है मदर का पेल्विस, ये एंटीरियर पोर्शन है, और पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर पोर्शन है। तो बेबी का ऑसिपुट कौन सी तरफ है, टुवर्ड्स द राइट, और ये कौन सा कहलाएगा, ये साइड है, दोनों राइट होगा या लेफ्ट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स ही बोलेंगे, बट ट्रांसवर्स में भी वो राइट साइड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स पोजीशन, ROT। नाउ बेबी थोड़ा टर्न हो गया है, चलो यहाँ से स्टार्ट किया, बेबी टर्न हो गया है, अभी उसका ऑसिपुट कौन सी डायरेक्शन में है, राइट, लेफ्ट, एंटीरियर या पोस्टीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर है। सो उसको एंटीरियर में तो लेफ्ट राइट है ही नहीं, सिर्फ एंटीरियर या पोस्टीरियर ही है, ट्रांसवर्स में लेफ्ट एंड राइट है, सो एंटीरियर है तो सिर्फ इतना ही, राइट ऑसिपुटो एंटीरियर। सो अभी भी बेबी इस तरफ है, सो दैट्स व्हाई इट इज राइट ऑसिपुटो एंटीरियर। नाउ बेबी और थोड़ा मूव हो गया है, एंड नाउ ये बेबी का ऑसिपुट इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पीछे का पोस्टीरियर। ओके, सो नाउ बेबी का हेड कौन सी तरफ है, एंटीरियर साइड है कि कंप्लीटली लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। कंप्लीटली एंटीरियर है कि पूरा लेफ्ट साइड है, अभी भी पूरा लेफ्ट साइड नहीं टर्न हो गया है, हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग कि ये लेफ्ट साइड है, बट अभी भी उसका हेड ऑसिपुट अभी भी थोड़ा एंटीरियर पोर्शन में है, पूरा मूव होके पूरा कंप्लीटली लेफ्ट नहीं हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो पूरा लेफ्ट तरफ है, जैसे हम देखते थे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, आपको दिखाती हूँ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। सो ये जो डिरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन में है, ना पूरा इंटीरियर ना पूरा ईस्ट तरफ, तो ये पूरा लेफ्ट है एंड यहाँ पर एंटीरियर है, सो उसको हम एंटीरियर ही बीच के कंसीडर करेंगे, पूरा लेफ्ट होगा तब वो ट्रांसवर्स कहलाएगा, बट वो अभी कंप्लीटली पूरा लेफ्ट नहीं है, सो देयर इज माइनर लेफ्ट एंड एंटीरियर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑसिपुटो एंटीरियर। लेफ्ट साइड तो है स्लाइटली, बट अभी भी एंटीरियर पोजिशन में है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कुछ डाउट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है? Online students, are you getting it or not? खबर पड़ी मैम। ओके, जस्ट इमेजिन, हमें ये पता है कि ये एंटीरियर है, ये लेफ्ट है एंड ये राइट है और ये पोस्टीरियर है, अगर बेबी का ऑसिपुट पूरा यहाँ पर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ गया और उसमें भी राइट साइड है, सो उसको राइट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स बोलेंगे। अभी बेबी का हेड मूव होके यहाँ पर आ गया है, सो अभी भी वो राइट साइड तो है, बट नाउ इट इज मोर टूवर्ड्स एंटीरियर, नॉट ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में नहीं है, अभी एंटीरियर की तरफ है, बट अभी भी वो थोड़ा राइट की तरफ है, सो उसको राइट ऑसिपुटो एंटीरियर बोलेंगे। नाउ बेबी का मूव, ये 4 चैम्बर्स है, नाउ बेबी का हेड मूव होकर ऑसिपुट यहाँ पर है, सो अभी वो ये डायरेक्शन में देखिए तो अभी ये वो लेफ्ट साइड है, बट अभी भी वो तो एंटीरियर तरफ पर ही है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑसिपुटो एंटीरियर। नाउ बेबी का हेड मूव होकर यहाँ पर आ गया है, सो नाउ वो कंप्लीटली ट्रांसवर्स लाइन पे है, ना कि एंटीरियर, पर वो लेफ्ट साइड है, सो दिस इज लेफ्ट ऑसिपुटो बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes or no? Yes or no? यस मैम। हाँ, फिर अभी बेबी का हेड पीछे की तरफ मूव हो रहा है, सो यू कैन सी हियर कि बेबी का हेड यहाँ पर लेफ्ट है, बट वो मोर टुवर्ड्स पोस्टीरियर है, लेफ्ट साइड तो है बट उसका हेड पूरा पीछे की तरफ चला गया है, सो दैट इज लेफ्ट साइड है, दैट्स व्हाई इट इज लेफ्ट। ऑसिपुट हम देख रहे हैं, रिलेशनशिप किसका देख रहे हैं, ऑसिपुट का, सो ऑसिपुटो, बट कहाँ पर है उसकी पोजिशन, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस, सो दैट इज व्हाई लेफ्ट ऑसिपुटो पोस्टीरियर। देन बेबी और मूव कर रहा है ना, वो पूरा ऑसिपुट राइट साइड मूव हो गया है, बट स्टिल वो पीछे की तरफ है, कंप्लीटली ऐसा नहीं है,
पूरा साइड पर नहीं है, अभी भी पीछे है, सो दैट्स व्हाई इट इज राइट। ऑसिपुट हम देख रहे हैं, ऑसिपुट का मदर के पेल्विस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई राइट ऑसिपुटो पोस्टीरियर, क्योंकि पीछे की तरफ है। ये तो हमने ऑसिपुट देखा। अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट कुछ और होगा, लाइक फेस होगा, ब्रो होगा, चीन होगा, बटक्स होगा, तो हम वो देखेंगे कि बटक्स कौन सी तरफ है। ये ऑसिपुट देखा, वैसे ही बटक्स का भी होता है। अंडरस्टूड? Yes. हाँ, लेट्स सी, फिगर तो आपने देख ली, लेट्स सी द बॉक्स। बॉक्स में से आपको शायद पता चल जाएगा अच्छे से। सो फीटल पोजिशन, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब बेबी का हेड नीचे है, सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, आरओए, एलओए, आरओपी, एलओपी, आरओटी, एलओटी, जो हमने अभी स्टडी किया ऑसिपुट को ध्यान में रखकर। अगर बेबी लॉन्जिट्यूडनल लाई है बट द प्रेजेंटेशन इज फेस, बेबी का फेस दिख रहा है, सो नाउ हम कंपैरिजन किससे करेंगे, मेंटम से। व्हाट इज मेंटम? मेंटम का मतलब क्या? इसमें हमने चीन। ऑसिपुट देखा, चीन, यस। सो बेबी का चीन अभी हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है, बिकॉज बेबी का हेड पूरा ओपन है। सो बेबी का चीन मदर के पेल्विस में कहां पर है? सो फर्स्ट इज RMA। RMA मतलब बेबी का हेड का चीन कहां पर होगा, कोई मुझे बताएगा? दिस इज द पेल्विस, ये पेल्विस है, ऐसे पेल्विस है, ओके। ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्जिट्यूडनल, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। सो RMA मतलब चीन कहां पर होगा बेबी का? समवेयर हियर। ना पूरा ट्रांसवर्स पर है, बट वो इंटीरियर साइड पर है, तो उसका चीन राइट साइड पर तो है बट इंटीरियर पोर्शन पे है, जस्ट लाइक दिस। कैन यू सी हियर? ये है ना जो राइट ऑसिपुट इंटीरियर है, ROA है, वैसे ही ऑसिपुट की जगह पर यहाँ पर बेबी का चीन होगा। यू कैन सी हियर, ये चीन पूरा एक्सटेंडेड हो गई, यहाँ पर इस पोजीशन पे होगा। सो ऑसिपुट की जगह पर सिर्फ चीन है, सो हम उसको ऑसिपुट है इसलिए ROA बोलते थे, बट अभी ऑसिपुट नहीं है, मेंटम है, सो RMA बोलेंगे, राइट मेंटो एंटीरियर। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, सो दैट इज RMA। LMA मतलब लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, बेबी जो ए वाली पोजीशन थी उसकी जगह LMA है, ऑसिपुट नहीं है, अभी मेंटम है, सो LMA हो सकती है। RMP, सो मतलब राइट मेंटो पोस्टीरियर। सो ऑसिपुट में बता सकते हो कौन सी होगी? मेंटम की जगह ऑसिपुट लेके बता सकते हो कि कौन सी पोजीशन है? एंटीरियर ऑक्सीपुट। एंटीरियर नहीं है, वो पोस्टीरियर है। राइट मेंटो पोस्टीरियर मतलब जो मेंटम है वो पीछे की तरफ है, ये पेल्विस है उसकी पोस्टीरियर तरफ है, बट मोर टुवर्ड्स द राइट साइड। तो इसमें कौन सी पोजीशन होगी ऑसिपुट में देखने जाए तो? पूरा राइट साइड चलो नहीं मुझे होगा। हाँ, कौन सी पोजीशन होगी इसमें से बताओ? राइट मेंटो पोस्टीरियर, तो इसमें से कौन सी पोजीशन होगी? सिर्फ ऑसिपुट की जगह मेंटम होगा, बट कौन सी पोजीशन होगी? Right occiputo posterior. हाँ, ये वाली पोजीशन होगी, यस यस, ये वाली पोजीशन होगी, बट ऑसिपुट की जगह मेंटम है। सो राइट ऑसिपुटो पोस्टीरियर की जगह, ऑसिपुट की जगह मेंटम है, सो दैट इज राइट मेंटो पोस्टीरियर। ओके, सो सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, अगर प्रेजेंटेशन अलग है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो बटक्स हम देखेंगे। सो बटक्स में लास्ट सेक्रम बोन कंसीडर करते हैं। सो LSA, लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर। लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर मतलब वो लेफ्ट साइड है, एंटीरियर साइड है। हम ऑसिपुट में देखने चाहे तो LOA वाली है, वैसे ही LSA होगी, ऑसिपुट की जगह सिर्फ सेक्रम है। LSP मतलब LOP है, उसकी जगह LSP है, ऑसिपुट की जगह सेक्रम अभी दिख रहा है। सो लेफ्ट सेक्रो पोस्टीरियर, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा बीच वाला अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट सेम रहेंगे, बीच वाला अल्फाबेट सिर्फ चेंज होता है ड्यू टू द प्रेजेंटिंग पार्ट। अदर प्रेजेंटेशन दैट इज ब्रो प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब अगर ब्रो प्रेजेंटेशन में दिस इज द पेल्विस, चलो दिस इज, यू हैव टू टेल मी द पोजीशन। दिस इज द पेल्विस, ये पेल्विस है मदर का, ये हम देख लेते हैं। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज एंटीरियर। अगर
बेबी का शोल्डर इज कंप्लीटली हियर, ब्रो फोरहेड पोर्शन इज कंप्लीटली हियर, यहाँ पर ही है, सो उसको कौन सी पोजीशन बोलोगे आप? ट्रांसवर्स। कौन सी पर ट्रांसवर्स भी? लेफ्ट ब्रो ट्रांसवर्स। यस, लेफ्ट ब्रो ट्रांसवर्स, सो उसमें हम ऐसा बोलते हैं। ओके, अगर बेबी का ब्रो शोल्डर प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, शोल्डर प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, तो लेफ्ट ब्रो पोस्टीरियर। राइट। लेफ्ट राइट Right. शोल्डर, नॉट ब्रो, Shoulder. आई एम टॉकिंग अबाउट Okay. शोल्डर। यस, हाँ, सो Okay. वो पता चल गया कि कैसे पोजीशन होती है। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जो भी तरफ होगा, हम उसको पोजीशन उसको दे देंगे। पोस्टीरियर है पर उसमें भी लेफ्ट और राइट है, सो उसको आगे लेफ्ट और राइट लिखेंगे। जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका अल्फाबेट होगा, उसका नाम होगा, एंड इंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स जो भी है वो लिख देंगे। अंडरस्टूड? That's right. ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज योर टास्क? आज हमने अभी जो स्टडी किया है, यू हैव टू रिवाइज दैट फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। आपको ग्रुप डिस्कशन करके रिवाइज करना है। आई विल जस्ट मेक अ कॉल टू समवन कि वो भी यहाँ पर मीटिंग में प्रेजेंट होगा, एंड दे विल चेक कि आप अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या नहीं। यू हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन इन बिटवीन, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच अदर कि व्हाट इज दिस। वहां पर कोई डाउट है तो एक पर्सन रॉन्ग बोल रहा है तो दूसरा उसको करेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन। बिफोर लीविंग, आई हैव टू क्लियर अ डाउट ऑफ मिस जेनिफर। ओके, आर यू कंफर्टेबल? मैं आपको सबके सामने वो सिखा दूं तो आर यू कंफर्टेबल? यस और नो? No worries. Yeah, ओके, yes. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? No, ma'am. ओके, ओके, सो जस्ट वेट, लेट मी ओपन। कैन यू टेल मी द पेज नंबर ऑफ प्रीवियस चैप्टर एमसीक्यू एक्सरसाइज? कौन सा पेज नंबर है? 317. 317. ओके, अगर सेक्स में नाकाम, छोटा और ढीला लिंग है। कैन यू सी द शेड स्क्रीन? 317 है ना, so it would be around 357. Okay, yes, हाँ, okay, so let's start with the question से start करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। so elimination strategy कैसे यूज करनी है, I'm making you understand. So let's read the first question.
The nurse is providing instruction to pregnant client with HIV infections regarding care of newborn after delivery. Explain the question me. Explain the question. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फुल स्टॉप तक क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नर्स क्या कर रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है HIV पेशेंट को. यस. इंस्ट्रक्शंस किसके रिगार्डिंग है? HIV. नो, नॉट एग्जैक्टली HIV. रिगार्डिंग Care of केयर ऑफ newborn. न्यूबॉर्न. Care of हाँ, newborn. Yeah. नर्स मदर को हेल्थ एजुकेशन काइंड ऑफ दे रही है कि वो मदर ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड है, सो न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है आफ्टर डिलीवरी, उसके रिगार्डिंग मदर को इंस्ट्रक्शंस दे रही है. द क्लाइंट आस्क्स द नर्स अबाउट फीडिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. व्हिच रिस्पॉन्स वुड द नर्स मेक टू द क्लाइंट? क्लाइंट ने क्या किया? नर्स को पूछा. क्या पूछा? Feeding option. हाँ, फीडिंग ऑप्शंस की, बेबी को कैसे फीड करवा सकती है, क्या करवा सकती है. सो विच रिस्पॉन्स वुड द नर्स मेक टू द क्लाइंट? मतलब हमें ये 4 जो रिस्पॉन्स जो नर्स ने दिए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज यू विल नीड अ बॉटल फीड. you will need to bottle feed your newborn. Yes, हमें पता है कि HIV जो पेशेंट होते हैं वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, बट फॉर दैट दे शुड रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट. सो हम उसको फर्स्ट को अभी साइड पर रखते हैं, डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करते हैं, फर्स्ट को अभी उसको साइड पर रखते हैं. सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है. सो फर्स्ट को हमने अभी कीप इट असाइड. सेकेंड रीड करते हैं. यू विल नीड टू फीड योर न्यू बॉर्न बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग. बेबी को नेजोगैस्ट्रिक की फीडिंग क्या जरूरत है? या तो ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं या तो बॉटल फीड. एनजी ट्यूब की तो जरूरत नहीं है ना, नोज में ट्यूब डालकर फीडिंग करवाने की क्या जरूरत है? सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो उसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट रीड करेंगे. यू विल बी एबल टू ब्रेस्ट फीड फॉर 6 months एंड देन विल नीड टू स्विच टू द बॉटल फीडिंग. ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 6 months तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है. फॉर दैट द कंडीशन वुड बी कि उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके चालू है तो ही वो 6 months तक ब्रेस्ट फीड करवा सकती है. डायरेक्टली ऐसा ब्रेस्ट फीड 6 months तक नहीं करवा सकती. और 6 months के बाद बॉटल फीडिंग नहीं दिया जाता. 6 months के बाद हम वीनिंग डाइट देते हैं. ड्यूरिंग दैट 6 month बॉटल फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग दोनों किया जाता है. सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, लेट्स सी फोर्थ. You will be able to breastfeed for 9 months and then will need to switch the bottle feeding. This is also wrong. 9 months तक breastfeeding होता ही नहीं है. अगर वो HIV पॉजिटिव नहीं भी होती तो भी 6 months तक ही होता, 9 months तक नहीं होता. तो चलो ये भी कैंसिल. तो जो हमने साइड पर रखा था दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्टली आपको मिल गया. कैसे करना है? अंडरस्टूड अबाउट एलिमिनेशन पैटर्न? Yes, yes. ओके, लेट्स सी अनदर एमसीक्यू. कौन सा देखे? कोई आपको पता है कि जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करे? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, so let's do question 5. क्या है? The nurse in the maternity unit is reviewing the client's records. Which client would the nurse identify as being at the most risk for developing DIC? Select all that apply. Now explain me the question. Question क्या बोल रहा है वो मुझे समझाओ. आपको क्वेश्चन में से क्या समझ आया? चलो बोलो. क्वेश्चन क्या बोल? रिस्क કોને છે? हाँ, सो यहाँ पर यू कैन सी हियर. आप जब टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये जो वर्ड्स है वो हाईलाइट करके दे जाती है पूरे सारे जो क्वेश्चंस में. मोस्ट, बेटर, बेस्ट, अप्रोप्रिएट. सो उससे आपको पता चलता है कि आपको उसमें से सबसे ज्यादा रिस्क मोस्ट रिस्क पर है वैसे फीमेल्स आपको फाइंड आउट करनी है. सो एक नर्स है वो मैटरनिटी यूनिट में सारे क्लाइंट्स के, उसके जितने भी पेशेंट है उसके रिकॉर्ड्स चेक कर रही है, उसकी फाइल देख रही है. सो उसमें से उसको लगता है कि इतने जो पेशेंट है उसको DIC का रिस्क ज्यादा है. सो लेट्स फाइंड आउट कि किसको DIC का रिस्क ज्यादा है. सो फर्स्ट इज अ प्राइमी ग्रेविडा विथ अब्रप्शियो प्लासेंटा. प्राइमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और उसको अब्रप्शियो प्लासेंटा हो गया है. अब्रप्शियो प्लासेंटा की वजह से DIC होता था? यस.
यस, तो हम उसको टिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट, अ प्राइमी ग्रेविडा हु डिलीवर्ड अ 10 pound infant 3 hours ago. एक प्राइमी ग्रेविडा है, उसने 10 pound का बेबी डिलीवर किया है 3 घंटे पहले. तो हमने जब डीआईसी के रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ा था, तो उसमें ऐसा कुछ था? नहीं. नो. सो इसको डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देंगे. थर्ड है अ ग्रेविडा 2. ग्रेविडा 2 मतलब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट. सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी. सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है, सेकेंड टाइम उसकी प्रेगनेंसी है. अ ग्रेविडा 2 who has just been diagnosed with dead fetus syndrome. dead fetus syndrome मतलब क्या? What do you mean by dead fetus syndrome? स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ नहीं है अभी उसको, वो प्रेग्नेंट ही है, डिलीवरी नहीं हुई है. अगर डिलीवरी होती तो पैरा लिखते, बट शी इज राइट नाउ प्रेग्नेंट. शी हैज नॉट अंडरगॉन डिलीवरी, बट अभी अभी उसको पता Still चला birth. कि उसका बेबी तो मर गया है. सो वो कौन सा अबॉर्शन है? स्टिल बर्थ नहीं हुआ है. शी इज करंटली प्रेग्नेंट बट बेबी इज डेड. Spontaneous. नो. Missed. मिस्ड अबॉर्शन. यस, मदर को पता ही नहीं चला. मदर को लगता था कि शी इज प्रेग्नेंट, बट अभी अभी जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ अ डेड फीटस सिंड्रोम. मतलब अभी उसको पता चला है कि उसका बेबी तो अंदर मर गया है. द बेबी इज नॉट अलाइव. अगर स्टिल बर्थ होता तो ऐसा लिखता कि पैरा 2 नॉट ग्रेविडा, बट राइट नाउ शी इज प्रेग्नेंट, बट उसको डेड फीटस सिंड्रोम हुआ है, मतलब बेबी अंदर ऑलरेडी, बेबी की डेथ हो गई है एंड मदर डज नॉट नो कि उसकी डेथ हो गई है. सो ऐसा कुछ था कि अगर फीटस का इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ या फिर मिस्ड अबॉर्शन या फीटस की डेथ की वजह से डीआईसी होता था या नहीं होता था? Yes. हाय. होता था. यस, so this would be our answer. Okay, next, a gravida 4 who delivered 8 hours ago and has lost 500 ml of blood. So fourth time pregnancy थी, but उसकी डिलीवरी हो गई है. who has delivered 8 hours ago and 500 ml blood loss हुआ था. so उसमें उसको डीआईसी हो सकता है या नहीं हो सकता? No. क्यों नो? रैशनल? Because 500 ml is normal blood loss. नॉर्मल. यस, 500 ml ब्लड लॉस तो नॉर्मली होता ही है. सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं. और वो भी डिलीवरी हुए भी 8 घंटे हो गए हैं. अगर कॉम्प्लिकेशंस होनी होती तब भी हो जाती. सो 8 घंटे से उसको कुछ नहीं हुआ है और उसकी उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था. फोर्थ टाइम उसकी डिलीवरी थी, 500 ml ही लॉस हुआ था. सो दिस कुड नॉट बी अवर आंसर. सो इसको हम कैंसिल कर देंगे. लास्ट इज अ प्राइमरी ग्रेविडा at 29 week of gestation who was recently diagnosed with gestational hypertension. Yes, प्राइमी ग्रेविडा है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है. अभी उसकी प्रेगनेंसी के कितने टाइम हुआ है? 29 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुआ है. एंड रिसेंटली अभी अभी पता चला है कि उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है. सो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का कोई लिंक है डीआईसी से? Yes. ये यस, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से डीआईसी का रिस्क बढ़ जाता है. सो एलिमिनेशन पैटर्न से हमें आंसर्स मिल गए. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ आर आवर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड व्हाट इज एलिमिनेशन पैटर्न? Yes. हाँ, आपको क्वेश्चन रीड करना है, फिर सोचना है कि ये कुछ रिलेट करता है, ऐसा कुछ था, नहीं था तो उसको कैंसल आउट कर दो. फिर उसको सोचने की जरूरत नहीं है. फिर आप डायरेक्टली मोस्ट फाइंड आउट करने बैठोगे तो आपसे गलती हो सकती है, बट एलिमिनेशन से आप करोगे सो देयर विल बी नो एनी मिस्टेक. अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ कि आपने, चलो फिफ्थ ऑप्शन आपको याद नहीं था, आपको, आप भूल गए कि ऐसा कुछ होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का कुछ लिंक था, सो यू डोंट नो, यू फॉरगेट अबाउट दैट. सो क्या करना है, साटा में वो स्किप कर देना. यू इफ यू आर नॉट श्योर इन साटा क्वेश्चन, स्किप इट, डोंट सिलेक्ट इट. आप सिर्फ 2 करोगे तो आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना. अगर आपने गलती से रॉन्ग कर दिया तो नेगेटिव हो सकता है. सो अगर साटा में अगर आप श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है, 50-50 है, तो उसको स्किप कर दो. साटा के सिवाय अगर आपने, चलो ये फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किया है, फोर्थ क्वेश्चन, और आपको उसमें लगता है कि आपको डाउट है कि फर्स्ट भी आ सकता है एंड थर्ड भी आ सकता है, यू आर नॉट श्योर,
ये दो तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए है फॉर एग्जाम्पल। सो फिर से आप रीड करोगे, ध्यान से रीड करोगे दोनों क्वेश्चन, फिर से सोचोगे कि आपने कुछ गलती तो नहीं की, बिकॉज दो आंसर तो हो नहीं सकते। फिर से आप रैशनल चेंज करके देखोगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सो यू विल फाइंड आउट कि हाँ चलो ये भी कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कुड बी अवर करेक्ट। सो अगर आपको एलिमिनेशन पैटर्न यूज करोगे तो आपके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो ऑलवेज यूज एलिमिनेशन पैटर्न। जो भी क्वेश्चन हो एलिमिनेशन पैटर्न से ही जाना है, सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, धीरे धीरे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अगर स्टार्टिंग में आपको लग जाता है चलो फर्स्ट आंसर ही हो सकता है, तो डायरेक्टली उसको टिक मत कर दो, पीछे के रीड तो करो, शायद उससे बेटर हो सकता है। प्रायोरिटाइजेशन में ऑलवेज ऐसा होगा, चारों चार करेक्ट होंगे, एक भी इनकरेक्ट नहीं होगा, बट उसमें से हमें बेस्ट फाइंड आउट करना है। सो कभी भी ऐसे रीड किया और आपको लग गया कि हाँ दिस इज द करेक्ट, उसको टिक करके नेक्स्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू रीड ऑल 4 ऑप्शंस, फिर आपको कंफर्मेशन देना है कि हाँ फर्स्ट ही करेक्ट था। अगर शायद रीड करते वक्त आपको पता चला कि फर्स्ट नहीं थर्ड करेक्ट था, सो यू कैन चेंज दैट। अंडरस्टूड? Yes. So this is how you have to do the elimination pattern. Now I'm leaving this meeting and I'm calling someone that can host the meeting and you can do group discussion. Okay? मैम And yes, and make sure tomorrow there is no morning class. कल morning session नहीं है. We will meet directly on 11th April at 9 a.m. and the class timing will be 9 to 10. After 10 o'clock, you have to do group discussion. Okay. मैम Yes? STI ની હિસ્ટ્રી હોય પેશન્ટની Hmm? તો એને HIV થવાના ચાન્સીસ હોય? हाँ यस, एसटीआई की हिस्ट्री है तो उसको एचआईवी हो सकता है। एचआईवी इज कंसीडर्ड एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। તો મેમ જે આ એક્સરસાઇઝ છે ને એમાં જે 10th નંબરનો MCQ છે ને એમાં ઓપ્શન જે C આપેલો છે ને એમાં એવું લખેલું ધ ક્લાયન્ટ હેઝ અ હિસ્ટ્રી ઓફ સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન અને HIV માટેનો જ છે, તો બી આન્સરમાં એ આપેલું નહીં. Okay, let's see, let's solve that question. पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। लेट्स सी। टेंथ क्वेश्चन, this one, right? Okay. The clinic nurse is performing a psychosocial assessment. Okay. The clinic nurse is performing a psychosocial assessment of a client who is pregnant. Which assessment finding indicate the nurse that the client is at risk for contacting HIV virus? Select all that apply. What does the question is telling you? Question से क्या समझ आया? નર્સે અસેસમેન્ટ કરે છે પ્રેગ્નન્ટ વુમન, Okay. તો એમાંથી કયું જે અસેસમેન્ટ છે ફાઇન્ડ કરે છે કે HIV એડ્સ હોઈ શકે? ओके, सो नर्स ने असेसमेंट करी है, साइकोसोशल असेसमेंट कर रही है पेशेंट का जो भी प्रेग्नेंट है, उसमें से उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस पेशेंट को रिस्क है एचआईवी होने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लाइंट इज हैज अ हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग यूज, इंट्रावेनस ड्रग यूज कर रही है फीमेल, सो उससे एचआईवी होने के चांसेस है या नहीं? है, चांसेस है। यस, आईवी ड्रग यूजर से वो नीडल शेयर करने की वजह से उसको हो सकती है। देन द क्लाइंट हैज अ सिग्निफिकेंट अदर हु इज हेटेरोसेक्सुअल, मतलब व्हाट डज दिस ऑप्शन इज टेलिंग यू? द क्लाइंट हैज अ सिग्निफिकेंट अदर हु इज हेटेरोसेक्सुअल, मतलब क्या? એક કરતા Opposite વધારે sex પર્સન જોડે એક કરતા. नो, એક કરતા વધારે પર્સન જોડે થાય તો પછી એચઆઈવી તો રિસ્ક વધી જાય। No, significant means એક જોડે જ. ઓકે, એન્ડ હુ ઇઝ ઓલ્સો Heterosexual means मतलब opposite sex. यस, अगर यहाँ पर होमोसेक्सुअल होता सो देयर वुड बी अ रिस्क, बट वो जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में है वो ऑपोजिट जेंडर का है, मतलब वो फीमेल है, वो
किसी एक के साथ, एंड वो भी मेल ही है, नॉट होमोसेक्सुअल, द पर्सन इज हेटेरोसेक्सुअल, सो दिस कुड बी अवर आंसर और नॉट? Not. No, this is not our answer. Okay, option 3, the client has a history of sexual transmitted infection. client की history है, उसको ऐसा sexual transmitted STI हुआ है, so उससे HIV हो सकता है? Yes. यस Yes, obviously उसको STI है तो HIV हो सकता है, उसमें there are risk, उसको risk है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, but हो सकता है. Let's see other options. Okay. Fourth option, the client has had one sexual partner for 10 years. एक ही sexual partner है 10 सालों से, तो उसको risk है HIV होने का? नहीं No. नो, बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स तो है ही नहीं, अगर मल्टीपल पार्टनर्स होते तो शायद रिस्क होता, बट ये भी नहीं है. द क्लाइंट हैज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. जेस्टेशनल डायबिटीज है तो उससे HIV हो सकता है? नहीं नो, सो आवर आंसर इज फर्स्ट एंड 3. अभी इसमें क्या डाउट है? टेल मी, અરે व्हाट મેમ वाज એ તો योर? થઈ ગયું સર મેં બીજા ક્વેશ્ચન ના આન્સર નો જવાબ જોઈ લીધો છે એટલે ओके, हाँ, सो दिस इज आवर आंसर. ये दो रिस्क है, सो एलिमिनेशन पैटर्न से आपको आंसर मिल गया. अंडरस्टूड? યસ ओके, एनी अदर डाउट्स? नो ओके, सो आप लोग ग्रुप डिस्कशन करो, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, किसी को एक को, और फिर अर्पिता मैम या फिर कोई एक आपको ज्वाइन कर लेगा. ओके, अनिशा, आई एम मेकिंग यू द होस्ट.